Hello dear children, a very warm welcome to the EVS class. I am sure you all are doing good. You all are happy, hale and hearty in your homes, eating good food, nutritious food, food which gives you all the necessary nutritional value. Then I'm sure you are following all the healthy habits, all the good habits, and all the basic habits to keep yourself fit and healthy. This is our EVS class, children, and for the past 2-3 lessons we have been talking and discussing about good food, healthy food, nutritious food, types of food, good eating habits, healthy habits, then good manners. ठीक है ना? पिछले 2-3 लेसन से हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छा खाना क्या होता है, हमें क्या क्या खाना चाहिए, हमारी क्या फूड हैबिट्स होनी चाहिए, अच्छी फूड हैबिट्स क्या होती हैं, देन जो बेसिक हेल्दी हैबिट्स होती हैं वो क्या होती हैं. ठीक है ना? हमें अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. उसके बाद फिर अभी प्रीवियस लेसन दैट इज गुड मैनर्स, उस लेसन में हमने क्या पढ़ा? वी डिस्कस्ड एंड वी टॉक्ड अबाउट some good manners, some basic manners, some good manners, and some magic words like please, sorry, thank you. Okay, इस तरह के हमने words, excuse me, we should use these words quite often in the sense कि जहाँ भी इनकी ज़रूरत है हमें ये words use करने चाहिए. What are the good manners? जैसे good manners क्या है? When someone gives you something, you should always say thank you. ठीक है? अगर किसी को आपसे आपकी वजह से कोई तकलीफ होती है, then you should say sorry. If someone says sorry to you, you should say it's okay. If someone says thank you to you should say welcome. Then you should speak politely and softly. चिल्ला करके लड़ाई झगड़ा करके बात नहीं करो. Softly and politely बात करो. Then often use these magic words like please, sorry, thank you, excuse me. ठीक है? Then greet everyone with a smile. किसी को जब greet करो तो उसको एक smile के साथ greet करो, so that the other person feels कि आप उसको खुश होकर के greet कर रहे हो. Then be obedient to your elders, to your parents, to your teachers. बड़े लोगों की बात मानो. जो भी आपको आपके पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, आपके टीचर्स आपको बोलते हैं, उनकी बात मानो. डू योर वर्क ऑन टाइम. अपना काम टाइम पे ख़त्म करो. बी पंक्चुअल टू स्कूल. स्कूल टाइम पे पहुँचो. टाइम पे पहुँचने के साथ साथ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी रेगुलर. रेगुलर होना भी बहुत ज़रूरी है. रेगुलर का मतलब है रोज आना. कभी तबीयत खराब हो गई, कहीं बाहर गए, कोई बात है, देन ऑफ कोर्स यू विल नॉट कम. But one should be regular to school. Okay? And then walk in a line inside the school campus, inside the school compound. Keep your neighboring area clean. Throw the garbage in the dustbin. Then when you are in the class, wait for your turn. बीच में मत चिल्लाओ. Wait for your turn to speak, or you can raise your hand. Then do not shout in the class. Do not waste paper. Share things with your friends, with others if they need your help. ठीक है? तो we discussed about lot of good manners. Now today we will be talking about another good manner which is extremely important. ठीक है? आज हम एक अच्छी हैबिट के बारे में, एक गुड वर्च्यू जिसको बोलते हैं, एक अच्छी हैबिट के बारे में हम बात करेंगे, विच इज केयरिंग एंड
through this lesson we will talk about caring and sharing. This is our chapter 11. This is chapter 11, caring and sharing. Like other good habits, good manners, caring and sharing is also a very important manner. किसी के लिए केयर करना, किसी के साथ अपनी चीजें शेयर करना, हमने इस प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा, गुड मैनर्स में भी पढ़ा हमने ना कि वी शुड शेयर आवर थिंग्स विथ आवर फ्रेंड्स. अगर किसी को जरूरत है तो लव प्लांट्स एंड लव एनिमल्स, मतलब लव प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स केयर फॉर देम. उनको प्यार करने का मतलब क्या है? उनकी केयर करो. किसी को जब हम प्यार करते हैं, किसी चीज को प्यार करते हैं तो वी केयर फॉर इट. वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कोई आपका फेवरेट टॉय है. सपोज अ डॉल इज अ फेवरेट टॉय, सो वी टेक सो मच ऑफ केयर ऑफ इट कि मेरी डॉल उसको ठीक से रखूं, कहीं इधर उधर नहीं फेंकूंगी, कहीं उस पर डस्ट ना पड़ जाए, कहीं वो गंदी ना हो, कहीं टूट ना जाए. सो जिसको हम पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसकी हम केयर भी करते हैं. सो इन दिस, थ्रू दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट केयरिंग एंड शेयरिंग. कि केयरिंग एंड शेयरिंग क्या होता है. इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू कैन से हैबिट बोल लो, आप इसको गुड मैनर बोल लो, गुड वर्च्यू बोल लो. ठीक है. सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? LEARNING, लर्निंग. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि इस लेसन में आप क्या क्या पढ़ोगे. ठीक है. Children, I'll drink just some water, just 1 minute. So the learning objectives are, children, first we will learn about life of Mother Teresa. I hope if not all of you, maybe some of you must have heard about Mother Teresa. अगर सबको नहीं भी पता होगा तो शायद कुछ बच्चों को मदर टेरेसा के बारे में मालूम होगा कि मदर टेरेसा कौन थी, वो क्या, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, क्यों उनको लोग इतना मानते थे, लोग उनको इतना पसंद क्यों करते थे. ठीक है. सो वी विल टॉक अबाउट लाइफ ऑफ मदर टेरेसा. लाइफ ऑफ Mother Teresa. Then sharing is caring and caring by sharing. Sharing is caring. इसका मतलब क्या है? When you share something with someone, that means you care for that person. जब आप किसी के साथ कोई चीज शेयर करते हो, that means आप उसकी केयर करते हो. आज फ्रेंड के पास पेंसिल नहीं है, पेंसिल बॉक्स लाना भूल गया, अब वर्क कैसे करेगा, कैसे क्लास में लिखेगा, तो मैं अपनी पेंसिल शेयर करती हूँ. ठीक है. आई विल शेयर माई पेंसिल विथ यू. तो दैट मीन्स यू केयर फॉर योर फ्रेंड. आप अपनी फ्रेंड के लिए केयर करते हो, तभी आप उसके साथ पेंसिल शेयर कर रहे हो. बहुत बार होता है ना, कोई टिफिन लाना भूल गया, मम्मी ने टिफिन बना के रखा था टेबल पे, मैं उठाना भूल गई, टिफिन लाना भूल गई. अब सब बच्चे लंच टाइम पे रेसेस में टिफिन खा रहे हैं, योर फ्रेंड डज नॉट हैव अ टिफिन. तो आप लोग क्या करते हो? सारे बच्चे मिलकर उसके साथ शेयर करते हो. दैट मीन्स यू ऑल केयर फॉर योर फ्रेंड. अब सारे बच्चे अपनी फ्रेंड के लिए केयर करते हो, तभी आप उसके साथ टिफिन अपना शेयर कर रहे हो. सो शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग बाय शेयरिंग. मतलब जिसके साथ आप, जिसको आप केयर करते हो, जिसकी आप केयर करते हो, उसके साथ आज आप अपनी चीजें शेयर करते हो. एंड इफ यू आर शेयरिंग समथिंग विद समवन, दैट मीन्स यू केयर फॉर दैट पर्सन. दोनों बातें हुई ना. किसी की केयर करना, शेयर करना किसी के साथ कोई चीज, मतलब आप उसकी केयर करते हो, और किसी की केयर करना उसके साथ अपनी चीजें शेयर करके. ठीक है. सो इट इज शेयरिंग
is caring and caring by sharing. Sharing is caring and caring by sharing. Then third is who needs care in the community. कम्युनिटी का मतलब होता है जहां बहुत सारे लोग एक साथ जो रहते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग रहते हैं. वी डू नॉट लिव ऑल अलोन. हम अकेले अकेले तो कहीं नहीं रहते हैं ना, हम अकेले अकेले नहीं रहते हैं, हम बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं, ठीक है. सो इट इज नोन एज कम्युनिटी, मतलब जहां सब लोग एक साथ रहते हैं. सो कम्युनिटी में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नीड केयर. हर कोई तो एक सा नहीं होता है ना, कोई बीमार हो सकता है, किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी को मेडिसिन की जरूरत हो सकती है, किसी को खाने की रिक्वायरमेंट हो सकती है. सो ऐसे लोग जिनको की किसी भी तरह की कोई नीड होती है, जिनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, जिनको केयर की जरूरत होती है. सबसे ज्यादा केयर की जरूरत किसको होती है? पीपल हु आर नॉट वेल, जिनकी तबीयत खराब होती है या कोई प्रॉब्लम है या कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, बीमार है, सबसे ज्यादा केयर उन्हीं की करनी होती है. सबसे ज्यादा केयर की जरूरत उन लोगों को ही होती है. या फिर जो एल्डरली थोड़े हो जाते हैं, जब बूढ़े होने पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सो दे नीड आवर केयर. So in this lesson, we will also learn about people who need care. जब हमारे आसपास ऐसे लोग जिनको की केयर की जरूरत होती है. So who need care in the community. Community का मतलब फिर से मैं बता रही हूँ, जब बहुत सारे लोग जब साथ रहते हैं, that is community. Then the benefits of sharing with people. मतलब लोगों के साथ जब हम शेयर करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट मतलब फायदा. When we share with other people. आप तो बहुत छोटे हो अभी, आप अभी और क्या शेयर करते हो क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ? यू शेयर योर स्टेशनरी आइटम्स. फ्रेंड के पास पेंसिल बॉक्स नहीं है तो अपना पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, या अपने कलर्स शेयर करते हो, क्रेयॉन्स शेयर करते हो, पेजेस शेयर किया. उसके पास आर्ट कॉपी नहीं है, ड्राइंग की कॉपी नहीं है, तो आपने अपनी नोटबुक से अपनी ड्राइंग कॉपी से एक पेज दे दिया. सो आफ्टर शेयरिंग यू फील सो गुड ना, जब आप शेयर करते हो एंड योर फ्रेंड सेज थैंक यू, सो यू फील सो गुड. सो बेनिफिट का मतलब है कि शेयर करने से हमें क्या मिलेगा? जो हमें खुशी मिलती है, जो हैप्पीनेस होती है, दैट इज बेनिफिट. The benefits of sharing with other people. ठीक है? So these are the लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन, केयरिंग एंड शेयरिंग. ये जो लेसन है केयरिंग एंड शेयरिंग, इस लेसन के ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है. मतलब इस लेसन में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे. सो बिफोर, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइफ ऑफ मदर टेरेसा. तो सबसे पहले हम मदर टेरेसा की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. मदर टेरेसा, ऑल ऑफ अस मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा. आप में से हो सकता है बहुत बच्चों ने नहीं भी सुना होगा, बहुत बच्चों ने सुना भी होगा मदर टेरेसा के बारे में, एटलीस्ट उनका नाम तो पता ही होगा. सो ऑल ऑफ अस मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा. शी वॉज एन एपिटोम ऑफ केयर. एपिटोम का मतलब होता है मतलब हाईएस्ट, सबसे ज्यादा. एपिटोम ऑफ केयर का मतलब है कि जो किसी की केयर करना, किसी की देखभाल करना, मतलब उनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता था. जो वो लोगों की देखभाल करती थी, जो लोगों की केयर करती थी, लोगों को प्यार करती थी, उनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता था. सो एपिटोम का मतलब होता है सबसे ज्यादा. ठीक है? शी वॉज एन एपिटोम ऑफ केयर. शी वॉज बोर्न ऑन August 26,
1910 at Albania. At the age of 12, she heard strongly the call of God. She knew she had to be a missionary. At the age of 18, she left her parental home, moved to Ireland, and then to India, where she lived for most of her life. हम सब ने मैक्सिमम लोगों ने मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा. मदर टेरेसा का नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा. शी वॉज एन एपिटोम ऑफ केयर. मतलब वो, जैसे मैंने बोला ना कि मतलब उनसे ज्यादा लोगों की और कोई केयर नहीं कर सकता था. उनका बर्थ कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910. जस्ट इमेजिन, 100 ईयर्स से भी ज्यादा पहले. ठीक है, 120 ईयर्स अगो. सो उनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में एक कंट्री जिसका नाम था अल्बानिया. जैसे आपकी कंट्री का नाम है, हमारी कंट्री का नाम है इंडिया. द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया. तो शी वॉज बोर्न इन अ कंट्री, उस कंट्री का नाम था अल्बानिया. पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो उनका जन्म हुआ था अल्बानिया में. एट द एज ऑफ 12 शी हैड स्ट्रांगली द कॉल ऑफ गॉड. जब वो 12 साल की थी तो उनको ऐसा लगा, मतलब कि वो किसी कुछ बहुत अलग, बहुत डिफरेंट काम करने के लिए उनका जन्म हुआ है, ऐसा उनको लगने लगा था. मतलब उनको लगा कि उनको मतलब भगवान कुछ दूसरा काम करने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है, उनका बर्थ हुआ है टू डू समथिंग डिफरेंट. मतलब बाकी लोगों से बहुत अलग काम करने के लिए उनका जन्म हुआ है. एंड गॉड इज आस्किंग हर टू डू समथिंग डिफरेंट. भगवान चाहते हैं कि वो कुछ अलग काम करे सबसे. ठीक है, मतलब कॉल ऑफ गॉड का मतलब है कि उनको ऐसा फील हुआ कि भगवान जैसे उनको कुछ बोल रहे हैं. यही कह रहे हैं कि शी इज मतलब उनको बहुत अच्छा काम करना है कुछ. शी न्यू शी हैड टू बी अ मिशनरी. मिशनरी का मतलब होता है कि जो लोग जैसे बहुत देखा है ना, बहुत जो साधु बन जाते हैं, जो पूरा ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, साधु बन जाते हैं जो लोग, तो वो अपना घर वर छोड़ देते हैं, घर छोड़ करके कहीं अपना आश्रम में रहते हैं, साधु बन जाते हैं. फिर वो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं. तो ऐसे ही होते हैं क्रिश्चियंस में, उनको बोलते हैं मिशनरी. जैसे हमारा रिलीजन है, जैसे अलग अलग रिलीजन होते हैं ना, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है. तो जो क्रिश्चियंस होते हैं क्रिश्चियनिटी में, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन में मिशनरीज होते हैं, जो लोग इस तरह का काम करते हैं. मतलब जो लोग दूसरों को उनके जो गॉड होते हैं जीसस क्राइस्ट, जैसे हम लोग के बहुत सारे गॉड हैं, तो क्रिश्चियंस के जो गॉड होते हैं जीसस क्राइस्ट, तो बहुत सारे लोग होते हैं उनके जो लोगों को जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में, उन्होंने जो जीसस क्राइस्ट ने अच्छी अच्छी बातें बोली थी उसके बारे में बताते हैं. तो मदर टेरेसा को लगा कि उनको मिशनरी बनना चाहिए. मिशनरी मतलब उनको घूम घूम करके लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्रिश्चियनिटी में जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं उसके बारे में उनको सबको बताना चाहिए. ठीक है, जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में और जो क्रिश्चियन रिलीजन में जो अच्छी बातें हैं, क्या क्या उसमें होता है, उन सब के बारे में उनको सबको बताना चाहिए दूसरी कंट्री में जाके, जहां पे लोगों को उसके बारे में उतना नहीं पता है ना. मिशनरी का मतलब होता है पर्सन sent on a religious mission, especially one sent to promote Christianity in a foreign land. इसका मतलब है कि जो लोग इस तरह के मतलब दूसरों लोगों को जो भगवान के बारे में बताते हैं, खास करके किसी दूसरी जगह पे जाके, फॉरेन लैंड का मतलब है अपनी कंट्री से बाहर जाके किसी दूसरी कंट्री में जाकर के क्रिश्चियन रिलीजन को और फैलाना और उसके बारे में सबको बताना. मिशनरी का ये मतलब होता है. तो उनको 12 इयर्स की एज में लगा कि उनको जो उनका जो गॉड है वो उनको ऐसा ही काम करने के लिए बोल रहा है. वो बोल रहे हैं उनको दैट शी शुड गो टू सम अदर कंट्री, सम माने फॉरेन लैंड, वहां जाकर के उनको लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना चाहिए. तो फिर वो जब 18 इयर्स की हुई तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया. मतलब जहाँ जो उनके पेरेंट्स का घर था वो उन्होंने छोड़ दिया. जब वो 18 इयर्स की हुई तो उन्होंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ करके एक दूसरी कंट्री चली गई. उस कंट्री का नाम था आयरलैंड. उनका बर्थ तो हुआ था अल्बानिया में,
उसके बाद 18 ईयर्स में वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ करके वो दूसरी कंट्री चली गई जिसका नाम था आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड भी एक कंट्री है, वहां चली गई। उसके बाद फिर वो इंडिया आ गई, इंडिया मतलब भारत आ गई, और यहाँ पे सारा उन्होंने उसके बाद अपनी पूरी लाइफ ऑलमोस्ट इंडिया में ही स्पेंड किया। फिर वो यहीं पे वो रह गई। इंडिया आने के बाद फिर शी डिड नॉट गो एनीवेयर एल्स, शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन इंडिया ओनली। मतलब फिर उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो इंडिया में ही बिताया। शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी and worked for the poorest of poor throughout her life. She died on 5th September 1997. ठीक है, फिर इंडिया में आकर के वो सेटल हो गई, इंडिया में रहने लगी। इंडिया में उन्होंने एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ लोग जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, मतलब उनकी हेल्प करते हैं, बहुत तरह से उनके लिए काम करते हैं। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान करना, मतलब अपनी इच्छा से कुछ देना, जबरदस्ती नहीं। चैरिटी का मतलब होता है कि हमने अपनी मर्जी से, अपनी विश से हमने कुछ डोनेट किया, कुछ भी सामान दिया, कुछ भी दान किया, उसको बोलते हैं चैरिटी। तो उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाई, और ये मेन इसका जो ऑफिस था कोलकाता में, अभी कोलकाता बोलते हैं, उस समय उसको कलकत्ता बोलते थे। तो उनका जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन्होंने बनाई, वो उसका मेन जो ऑफिस था वो कलकत्ता में था, और ये मदर टेरेसा खुद भी वो कलकत्ता में रहती थी। उनका रियल नेम मदर टेरेसा नहीं था, हर रियल नेम वाज नॉट मदर टेरेसा, उनका रियल नेम दूसरा था। बहुत टफ सा वर्ड है, उनका रियल नेम मदर टेरेसा नहीं था। सिंस वो दूसरे लोगों की इतनी केयर करती थी, इतना उनको लुक आफ्टर करती थी, बाद में उनका नाम मदर टेरेसा पड़ा। ठीक है, मतलब वो सबके लिए माँ के समान थी। सबको जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, तो वैसे ही वो सबको प्यार करती थी। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाया, और मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जो लोग थे उनका मतलब मेन काम जो था, जो बहुत ज्यादा गरीब होते थे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थ्रू आउट हर लाइफ। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का मतलब है जो बहुत एक्सट्रीमली पुअर पीपल, जो बहुत गरीब होते थे, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, जिनके पास अपने कुछ अगर बीमार हो गए, तबीयत खराब हुई तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो वो ऐसे लोगों की केयर करती थी, वो ऐसे लोगों को लुक आफ्टर करती थी। मतलब बहुत बहुत बीमार लोग जिनके घर में कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, वो रोड पे पड़े रहते थे, उसको वो वैसे लोगों को वो रोड से उठा करके अपने मिशनरीज ऑफ चैरिटी में लाती थी, वहाँ पे रख करके उनको बहुत मतलब उनको पूरी उनकी केयर करना, उनको लुक आफ्टर करना, और बहुत उनकी देखभाल करती थी। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मेन काम यही था। मेन तो उसका ऑफिस कोलकाता में है, एंड इसकी अलग अलग सिटीज में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो वो उन्होंने जो है अपनी पूरी लाइफ इसी में उन्होंने स्पेंड कर दिया। मतलब जो बहुत ही गरीब, बहुत गरीब होते थे, उनको लुक आफ्टर करने में, उनकी देखभाल करने में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी। उनकी डेथ हुई 5 सितंबर 1997 को। शी वॉज बोर्न ऑन अगस्त 26, 1910, मतलब 26 अगस्त 1910 में उनका बर्थ हुआ था, और उनकी डेथ हुई 5 सितंबर 1997 में। In 1979, Mother Teresa was awarded the Nobel Peace Prize. She shared the pain of poor people and took care of them throughout her life. Thus, she begged love and respect from all. 1997 में उनकी डेथ हुई। इसके पहले उनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। एक नोबेल प्राइजेस मिलते हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे साइंस के फील्ड में मिलता है, मेडिसिन के फील्ड में मिलता है, लिटरेचर के फील्ड में मिलता है, वैसे ही पीस मतलब शांति। तो जो लोग बहुत चैरिटी वाला काम करते हैं या ऐसे काम करते हैं जिनको जिससे कि बहुत लोगों का फायदा हो, तो इस तरह के लोगों को माने ये नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिलता है। ठीक है, ये फाउंडेशन है
ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबल का नाम सुना होगा। सो अल्फ्रेड नोबल के नाम पे ये ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो अल्फ्रेड नोबल के नाम पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, नोबल पीस प्राइज। एंड एवरी ईयर, हर साल अलग अलग फील्ड के लोगों को प्राइज मिलता है, अवार्ड मिलता है। मतलब अवार्ड का मतलब है कि वो जो उन्होंने जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए उनको एक्नॉलेज करते हैं। तो 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला था। पीस प्राइज मिलता है जो लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए जो काम करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो काम करते हैं उनको मिलता है नोबेल पीस प्राइज। सो 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला था। शी शेयर्ड द पेन ऑफ पुअर पीपल एंड टुक केयर ऑफ देम थ्रू आउट हर लाइफ। अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने जो है ऐसे ही लोगों की देखभाल करने में, ऐसे लोगों को लुक आफ्टर करने में बिता दिया। ऐसे लोग मतलब जो बहुत बीमार होते थे, बहुत जिनकी तबीयत खराब, जिनको लुक आफ्टर करने वाला, देखने वाला कोई नहीं होता था। कई बार ऐसे लोग होते थे जिनके बीमारी से उनके हाथ पांव भी खराब हो जाते थे। वो ऐसे लोगों को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाती थी, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में, और उनकी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उनकी देखभाल करती थी। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी शी इज होल्डिंग अ चाइल्ड। तो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने जो जरूरतमंद लोग होते थे, जो बहुत ज्यादा नीडी होते थे, उनको लुक आफ्टर करने में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी। Thus, she bagged love and respect from all. जैसा मैंने बताया, her real name was not Mother Teresa. उनका असली नाम मदर टेरेसा नहीं था, बट शी वॉज लेटर, बाद में उनको लोग मदर टेरेसा बोलने लगे थे क्योंकि उन्होंने इतनी लोगों की हेल्प की। तो इसीलिए उनको सब लोग मदर टेरेसा बोलते थे। मदर का मतलब क्या होता है? मदर माने माँ होता है, तो उनको इसीलिए बाद में उनका नाम पड़ गया मदर टेरेसा। एंड शी इज नोन बाय मदर टेरेसा टिल डेट। अभी भी उनको सब लोग मदर टेरेसा ही बोलते हैं। ठीक है। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज उन्होंने बनाया था, और उसमें अब तो उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी जगह कोई और है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जितने लोग काम करते हैं, सबका काम यही होता है कि जो बहुत ज्यादा जो नीडी लोग हैं, बहुत ज्यादा जो तकलीफ में जो लोग होते हैं, उनको लुक आफ्टर करना एंड उनकी देखभाल करना। जस्ट 1 minute चिल्ड्रन। ओके, सो दिस इज द लाइफ ऑफ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं। अभी आप लोग जस्ट क्लास 1 में हो, कितना पढ़ोगे? तो बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटे में उनकी लाइफ के बारे में बताया है। ठीक है। तो वो फिर उसके बाद वो बहुत जगह जाती भी थी, बहुत लोगों से मिलती थी, एंड सब जगह जाकर के वो लोगों को यही बताती थी, यही सिखाती थी कि लोगों के साथ हमको उनकी कैसे केयर करनी चाहिए। मतलब वी शुड केयर फॉर नीडी। जिन लोगों को हमारी हेल्प की जरूरत है, जो लोग तकलीफ में है, उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो सबको यही बात बताती थी। हर किसी को दूसरे कंट्रीज में जाती थी, बहुत लोगों से मिलती थी, एंड वो बेसिकली इसी चीज को स्प्रेड करती थी कि सब लोग, मतलब जिस किसी को अगर हमारी हेल्प की जरूरत है, तो हम जिस भी तरह से, इन वॉट एवर वे वी कैन हेल्प देम, वी मस्ट हेल्प द नीडी। जिस तरीके से भी हम नीडी लोगों की, जिस किसी को कोई जरूरत है, उनकी हेल्प कर सकते हैं, वी मस्ट हेल्प देम। वी मस्ट केयर फॉर पीपल, मतलब लोगों की केयर करना चाहिए, लोगों के बारे में केयर करना चाहिए। ठीक है। जब हम केयर करेंगे तभी हम शेयर भी कर पाएंगे लोगों के साथ। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मदर टेरेसा। बहुत शॉर्ट में है उनके बारे में, अदरवाइज तो बहुत कुछ है उनकी लाइफ के बारे में। देन जैसे आप अपनी फैमिली में क्या करते हो? देख लो मम्मी के पास बहुत सारा काम है, मम्मी बहुत काम कर रही है, थक गई है, तो अब क्या बोलते हो? रुको मम्मी, लो मैं ये काम, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। अब जाके किचन में मम्मी की जो भी हेल्प हो सकती है, कुछ वेजिटेबल वॉश करना है, खाना बन गया, खाना ला के टेबल पे रखना है, खाने के बाद प्लेट्स अंदर लेकर जानी है, जैसे भी आप मम्मी की हेल्प कर सकते हो, आप मम्मी की हेल्प करते हो। वाई? बिकॉज यू केयर फॉर योर मदर। तो ऐसे फैमिली में क्या होता है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक दूसरे की हेल्प हम क्यों करते हैं? बिकॉज वी केयर फॉर आवर फैमिली मेंबर्स।
इसी तरह से हम अपने बाकी लोगों की भी हेल्प करते हैं, हम जिनकी केयर करते हैं. So today I will stop here only, children. In the next class we will start a new topic, that is sharing and caring in a family. मतलब फैमिली में हम कैसे शेयर एंड केयर करते हैं एक दूसरे के लिए. So thank you, children.